تلنگانہ کے 2 گریجویٹس حلقوں کی رائے دہی کا مجموعی 68%، 169 امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ ہوگا 17 مارچ کو۔ رائے دہی میں گریجویٹس نے لیا بڑھ چڑھ کر حصہ، وزراء، چیف سیکرٹری اور سیاسی قائدین نے اپنے حق رائے دہی کا کیا استعمال۔ اسمبلی بجٹ اجلاس کا ہوگا پیر کو آغاز، 18 مارچ کو بجٹ ہوگا پیش، تمام انتظامات مکمل۔ تلنگانہ میں بی جے پی کھیلنا شروع کرے گی تو ٹی آر ایس کا دماغ گھوم جائے گا، مرکزی وزیر کشن ریڈی کا انتباہ۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز لے کر آئے ہیں 3 BHK اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائشی فلیٹس، جسے بنائے ہم نے اور بسائیں گے آپ۔ ریتی باولی پلر نمبر 56، آصف نگر، مہدی پٹنم روڈ اور آرام گڑھ ایکس روڈ پلر نمبر 307۔ لگژری ایمینٹیز جیسے سوئمنگ پول اور چلڈرنز پلے ایریا کی سہولیات سے آراستہ ہمارے یہاں کمرشل شاپس بھی موجود ہیں، مہدی پٹنم اور ٹولی چوکی چوراہے پر۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ سرخیاں آپ نے دیکھی، اب پیش خبروں کی تفصیل۔ تلنگانہ کی گریجویٹ زمرہ کونسل کے 2 حلقوں کی رائے دہی پرامن رہی۔ حیدرآباد رنگا ریڈی اور محبوب نگر حلقے میں شام 4 بجے تک مجموعی فیصد 63.86 رہا، جبکہ کھمم، ورنگل اور نلگونڈا حلقے میں مجموعی فیصد 65.89 درج کیا گیا۔ رائے دہی کے اختتام کے بعد قطعی فیصد جاری کیا جائے گا۔ اتوار کے دن صبح سے ہی تمام پولنگ مراکز پر رائے دہی کا آغاز ہوا۔ شروعات میں ووٹنگ فیصد میں سست روی دیکھی گئی، اس کے بعد پولنگ مراکز پر ووٹرز کی طویل قطاریں دیکھی گئیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے فی ووٹ کے لیے 3 منٹ رکھے گئے تھے، لیکن بیلٹ پیپر بڑا ہونے کی وجہ سے رائے دہی میں تاخیر ہوئی ہے۔ دوپہر 2 بجے تک 40% پولنگ ریکارڈ کی گئی۔ شام 4 بجے تک پولنگ مراکز پر پہنچنے والے ووٹرز کو ووٹ ڈالنے کا موقع دیا گیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے حیدرآباد، رنگا ریڈی اور محبوب نگر حلقے کے لیے 799 پولنگ مراکز قائم کیے گئے تھے۔ اس حلقے میں 5,31,268 ووٹرز ہیں، جو 93 امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ کھمم، ورنگل اور نلگونڈا حلقے میں 731 پولنگ مراکز پر 5,05,565 ووٹرز ووٹ ڈالنے کے انتظامات کیے گئے تھے۔ رائے دہی مکمل ہونے کے بعد بیلٹ باکسز کو سرونگر اسٹیڈیم منتقل کرنے کا عمل شروع ہوا ہے۔ 17 مارچ کو ووٹوں کی گنتی ہوگی۔ تلنگانہ کے گریجویٹ زمرہ کونسل انتخابات کی اتوار کے دن رائے دہی کے موقع پر ابتدائی اوقات میں ہی وزراء اور اعلیٰ عہدیداروں نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ وزیر بلدی نظم و نسق کے تارک راما راؤ نے بنجارہ ہلز میں واقع پولنگ مراکز پر ووٹ ڈالا۔ اضلاع میں دیگر وزراء نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ ریاستی چیف سیکرٹری نے اوپر پلی میں اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا ہے۔ انہوں نے الیکشن کے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کی میئر گدوال وجے لکشمی نے NBT نگر میں اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا اور سابق میئر بی رام موہن نے شیخ پیٹ میں واقع اپنے پولنگ بوتھ پر حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ کانگریس اور دیگر سیاسی جماعتوں کے قائدین نے بھی حق رائے دہی سے استفادہ کیا۔ اس کے علاوہ شہر کے مختلف پولنگ مراکز پر ووٹرز کا ہجوم دیکھا گیا۔ ریاستی چیف الیکٹورل آفیسر شیشناگ گوئل نے کہا ہے کہ رائے دہی مکمل طور پر پرامن رہی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے خود بھی پولنگ مراکز کا دورہ کرتے ہوئے رائے دہی کا جائزہ لیا۔ ووٹرز نے جوش و خروش کے ساتھ رائے دہی میں حصہ لیا۔ شیشناگ گوئل نے کہا کہ ووٹرز کے پاس سے کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی۔ دونوں حلقوں سے بڑی تعداد میں امیدوار میدان میں ہیں۔ تمام مقامات پر پولیس کا بہترین بندوبست کیا گیا تھا۔
इन्होंने कहा कि सियासी जमातों की जानिब से बास शिकायत मौसूल हुई है। जिस अजला से शिकायत मिली है वहां के कलेक्टर्स को इत्तला दी गई है। शाम 4 बजे के बाद भी कई मुकामात पर वोटर्स की कतारें देखी गई। इन्होंने कहा कि वजीर दाखिला के बयान पर इलेक्शन कमीशन फैसला लेगी। खम्मम में बीजेपी उम्मीदवार पर हमले की शिकायत मौसूल हुई है। ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटों की गिनती के लिए तमाम इंतजामात किए गए हैं। रियासती असेंबली के बजट इजलास का पीर के दिन से आगाज होगा। पीर के दिन सुबह 11 बजे रियासती गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन का खिताब होगा। इसके बाद असेंबली की BAC कमेटी का इजलास स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की सदारत में मुनक्किद होगा, जिसमें असेंबली एजेंडे को कतियत दी जाएगी। 16 मार्च को नागार्जुना सागर के आंजहानी रुकन असेंबली N नरसिम्हलू को ताज़ियत पेश की जाएगी। 17 मार्च को गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर पर मुबाहिस होंगे। 18 मार्च को वजीर फाइनेंस हरीश राव सुबह 11:30 पर साल 2021-22 का बजट पेश करेंगे। गुज़िश्ता साल 1,82,000 का बजट पेश किया गया था। कोविड-19 की वजह से हुकूमत को 50,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। ओहदेदारों के मुताबिक इस बार बजट में कमी की जाएगी। ताहम हाल ही में वजीर आला के बयान के मुताबिक बजट में इजाफा किया जा सकता है। इस बार बजट डिजिटल पेश करने के कवी इम्कानात हैं। ज़राए के मुताबिक इजलास 27 मार्च तक चलाने का इम्कान है। कतई फैसला BAC इजलास में किया जाएगा। अपोजिशन कांग्रेस और बीजेपी खरीदारी मराकिज, वकला जोड़े का कत्ल, सरकारी मुलाजिमतें, बेरोजगारी भत्ता, डबल बेडरूम, रियासती कर्ज जैसे मौज़ूआत पर हुकूमत को घेरने के लिए कमर बस्ता हो रही है। दूसरी तरफ हुकूमत भी इनके जवाबात देने के लिए पूरी तरह तैयार है। असेंबली इजलास के दौरान कौंसिल के नतायज से गर्मा गर्म मुबाहिस के कवी इम्कानात हैं। असेंबली इजलास के दौरान कोविड-19 के कवायद पर सख्ती से अमल आवरी की जाएगी। पुलिस के वसी तर इंतजामात भी किए गए हैं। रियासती काबीना इजलास 18 मार्च को बजट पेश करने से कबल मुनक्किद होगा, जिसमें साल 2021-22 के बजट को मंजूरी दी जाएगी। हुकूमत के दीगर बिल्स के अलावा मुलाजमीन के PRC और सबकदोशी की हद उम्र में इजाफे का फैसला लिया जाएगा। इम्कान है कि 17 मार्च की शाम भी इजलास मुनक्किद हो सकता है, लेकिन कौंसिल के नतायज के पेश नज़र इसके इम्कानात कम ही हैं। दूसरी तरफ TRS लेजिस्लेचर पार्टी के इजलास को लेकर भी मुख्तलिफ क़यास आराइयाँ जारी हैं। उमूमन असेंबली इजलास से पहले ये इजलास मुनक्किद किया जाता था, लेकिन इस बार इजलास तलब नहीं किया गया। पार्टी ज़राए के मुताबिक 18 मार्च को बजट पेश होने के बाद वज़ीर आला इजलास तलब कर सकते हैं। तब तक कौंसिल के नतायज का ऐलान हो जाएगा। इसको नज़र में रखते हुए असेंबली की हिकमत अमली को कतियत दी जाएगी। मरकजी ममलिकती वजीर किशन रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना में बीजेपी ने अभी खेल शुरू नहीं किया। खेल शुरू करने पर TRS का दिमाग घूम जाएगा। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि भैंसा में मुसलसिल हमलों से गरीब अवाम की जायदादों को नजरातिश किया गया तो मरकजी वजारत दाखिला खामोश नहीं बैठेगा। इन्होंने कहा कि बहुत जल्द चीफ सेक्रेटरी और गवर्नर से रिपोर्ट मिलते ही कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने कहा कि मजलिस जहां मजबूत है वहां इस तरह फिरकावाराना तशद्दुद हो रहे हैं, पुराना शहर हो या निर्मल। हुक्मरान जमात का मुकम्मल ताउन हासिल है। वजीर आला के फर्जन शैडो चीफ मिनिस्टर का रोल अदा कर रहे हैं। दीगर रियासतों के मसाइल पर बात करने वाले KTR भैंसा के वाक़यात पर खामोश क्यों हैं? इन्होंने कहा कि जो भी इंतखाबात होते हैं इसमें मरकजी हुकूमत को निशाना बनाना रियासती हुकूमत की आदत बन चुकी है। KTR के सिर्फ हवाई किले हैं जो झूठ का पुलिंदा है। इन्होंने कहा कि TRS पार्टी तेलंगाना को अपनी जागीर समझ रही है, इसीलिए मनमानी हुकूमत चलाई जा रही है। कानून के मुताबिक हक़ राय दही के बाद किसको वोट दिया इसका इंकशाफ करना गैर दस्तूरी है, लेकिन रियासत के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कौंसिल इंतखाबात की राय दही के दौरान अपने वोट इस्तेमाल करने के बाद
मीडिया से बात करते हुए अपने पोलिंग बूथ के नंबर और टीआरएस के उम्मीदवार वानी देवी के हक में वोट देने का इंकशाफ कर दिया। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि उनका वोट अहल है या नहीं, इसका जायजा लिया जाएगा। माजी में एक शख्स ने भी इसी तरह नाम लिया था, इसका वोट अहल करार दिया गया था या नहीं, इसका अहाता किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अभी तक इस सिलसिले में कोई शिकायत इलेक्शन कमीशन को मौसूल नहीं हुई है। रिटर्निंग ऑफिसर की शिकायत मिलने के बाद वजीर के वोट से मुताल्लिक जायजा लेने के बाद फैसला लिया जाएगा। 845 की నేను బూత్ నంబర్ 588 కి ఓటేసిన మా క్యాండిడేట్ వాణిదేవి మేడం को ఓటేసిన। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान डी श्रवण ने कहा है कि रियासत में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है या नहीं, इसका खुलासा होना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि पोलिंग मराकज पर टीआरएस के हक में वोट डालने की खुलेआम मुहिम चलाई जा रही है। डी श्रवण ने कहा कि दस्तूरी तौर पर हलफ लेने वाले वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने वोट डालने के बाद किस पोलिंग मराकज पर वोट डाला और टीआरएस की उम्मीदवार वानी देवी के हक में वोट देने का इंकशाफ किया है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर शेषनाग गोयल किस तरह मोहम्मद महमूद अली को मुस्तरद करेंगे, इसका खुलासा होना चाहिए। इन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता दिन ही कांग्रेस पार्टी ने शिकायत की थी कि टीआरएस की जानिब से रकम के जरिए वोट खरीदे जा रहे हैं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। टीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने ग्रेजुएट काउंसिल इंतखाबात में टीआरएस की कामयाबी के लिए काम करने वालों से इजहार तशक्कुर किया। इन्होंने इस इंतखाबात में इंचार्ज के तौर पर खिदमात अंजाम देने वाले वज़रा, अरकान असम्बली और पार्टी कारकुनों का शुक्रिया अदा किया। गुज़िश्ता 2 हफ्तों से पार्टी इंतजामिया इस इंतखाबात में कामयाबी के लिए जो कोशिश की है, इस पर अवाम का मुस्बित रद्द-ए-अमल सामने आया है। इन्होंने कहा कि उनकी अपील पर ग्रेजुएट्स ने अपने हक़ राय दही का भरपूर इस्तेमाल किया है। तेलंगाना बीजेपी सदर बी संजय ने कहा कि रियासत में जमहूरियत का मजाक उड़ाया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि हफ्ते की रात से वोटर्स को रागिब करने के लिए रुकुमात तकसीम की गई। एक वोट के लिए 10,000 रुपए दिए गए और मुलाजमीन को खौफजदा किया गया। इन्होंने कहा कि कितनी रकम जब्त की गई, इसका खुलासा होना चाहिए। पुलिस की निगरानी में रकम तकसीम हुई है। इन्होंने कहा कि महबूबाबाद में बीजेपी उम्मीदवार प्रमींदर रेड्डी पर हमला हुआ, जिसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। पुलिस की निगरानी में यह हमला हुआ है। पुलिस गैर जानिबदाराना रोल अदा करने में नाकाम रही। इन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी ने शिकस्त के खौफ से बीजेपी उम्मीदवार पर हमला किया, इस पर इलेक्शन कमीशन फौरन कार्रवाई करे। बी संजय ने वोट डालने वाले हर वोटर से इजहार तशक्कुर किया है। इन्होंने कहा कि जिस तरह से राय दही हुई, इससे अंदाजा हो गया कि बीजेपी की दोनों नशिस्तों पर कामयाबी यकीनी है। अब लेते हैं एक वक्फा, वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56 आसिफ नगर मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस अपोजिट रिलायंस स्मार्ट टोली चौकी हैदराबाद। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। रियासत तेलंगाना में इतवार को कोविड के 228 नए केसेस दर्ज हुए और एक मौत की तस्दीक हुई। रियासत में मजमूई केसेस की तादाद 3,01,161 तक जा पहुंची है। जुमला अमवात की तादाद 1,653 बताई गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 2,97,515 बताई गई है। जिलेवारी सतह पर देखा जाए तो हैदराबाद में 46, मलकाजगिरी में 15, रंगारेड्डी में 17, दीगर अजला में 10 से कम केसेस दर्ज हुए हैं। 4 अजला में एक केस भी दर्ज नहीं हुआ।
दूसरी जानिब रियासत में कोविड टीका देने का अमल भी जारी है। हफ्ते के दिन तक रियासत में 5,07,558 वैक्सीन दिए जा चुके हैं। हफ्ते के दिन 22,087 अफराद को टीके दिए गए। फ्रंटलाइन वॉरियर के अलावा 1 मार्च से 60 साल मुकम्मल होने वाले और मुख्तलिफ अमराज से मुतासिर 45 साल की उम्र वालों को टीके देने का अमल शुरू किया गया था। 5 लाख के बशमूल 2,19,222 टीके दूसरे डोज के लिए दिए गए। रियासत में जुमला 396 सरकारी कोविड वैक्सीन सेंटर और 191 खानगी टीका सेंटर हैं। टीका देने का अमल जारी है। उर्दू मस्कन में हुकूमत में दारुल अफ्ता जामे निज़ामिया हैदराबाद हज़रत मौलाना मुफ्ती अजीमुद्दीन क़िबला के हाथों नातिया मजमुआ नुमाइंदे शायर काजी फारूक आरिफी की किताब सनाए अक़दस का रस्म इजरा अमल में आया। बाद में काजी आरिफ अबुल उलाई मेमोरियल एकेडमी के ज़ेर एहतमाम गैर तरही नातिया मुशायरे का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसकी हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद कबूल बादशाह क़ादरी शत्तारी क़िबला सज्जादा नशीन आस्ताना शत्तारिया वो सदर मोतमद मजलिस उलमाए दक्कन हैदराबाद निगरानी कर रहे थे। तकरीब में प्रोफेसर एस शकूर और सदर नशीन उर्दू एकेडमी रहीमुद्दीन अंसारी के अलावा दूसरों ने शिरकत की। प्रिंसेस असरा हॉस्पिटल की NICU की चीफ कंसल्टेंट डॉक्टर लक्ष्मी ने नवमौलूद बच्चों की पैदाइश के वक्त होने वाली बीमारियों पर तफसीली रोशनी डाली। इन्होंने बताया कि क़ब्ल अज़ वक्त पैदा होने वाले बच्चों में इन्फेक्शन, तनफ्फुस, दिल के अमराज के अलावा उनका वजन भी कम होता है। ऐसे बच्चों के इलाज के लिए असरा हॉस्पिटल में तमाम तर सहूलतें दस्तयाब हैं। इन्होंने बताया कि बाज़ औक़ात ऐसे बच्चों को सर्जरी की भी ज़रूरत लाहक होती है। इन्होंने बताया कि असरा अस्पताल एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जहां इंतहाई असरी मशीनरीज और आलात से मरीजों का इलाज करके उनकी जान बचाई जाती है। उनका कहना था कि असरा अस्पताल के मैनेजिंग डायरेक्टर व कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवीसी ने अस्पताल को बहुत फ़रोग़ दिया, जहां तजुर्बेकार व माहिर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ खिदमात अंजाम दे रहा है। इन्होंने कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवीसी से इज़हार तशक्कुर किया। असरा हॉस्पिटल में कम मसारिफ और आरोग्यश्री स्कीम के ज़रिए भी इलाज किया जाता है। इन्होंने मज़ीद बताया कि जिन बच्चों को NICU के तहत आर्जा लाहक है वो असरा अस्पताल की खिदमात से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। मैं डॉक्टर लक्ष्मी हूँ, प्रिंसेस असरा हॉस्पिटल में NICU की चीफ कंसल्टेंट हूँ। NICU वो जगह होता है जहाँ 30 दिन के अंदर बच्चों का दाखिला करते हैं। किसी बीमारी हो जाता है बच्चों को, ऐसे बच्चों को वहाँ यहाँ इलाज करते हैं। प्रिंसेस असरा हॉस्पिटल के NICU की ये खासियत है कि ये लेवल 3 NICU कहलाता है। जो लेवल 3 NICU वो होता है जो सबसे क्रिटिकली इल बेबीज़ को हैंडल करने के हर प्रकार के फैसिलिटीज़ यहाँ होते हैं। क्रिटिकली इल बेबीज़ वो होते हैं जो वक्त से पैदा हो जाते हैं, जो 6ठे महीने में, 7वें महीने में या 8वें महीने में पैदा होते हैं, या जो लो बर्थ वेट बेबीज़ होते हैं, या जो 1 kg के अंदर या 2 kg के अंदर बेबीज़ होते हैं जिनको NICU की ज़रूरत होती है, या जो बेबीज़ को कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं पैदा होने के बाद, जो सांस में दिक्कत हो सकता है, जॉन्डिस ज़्यादा हो सकता है, इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकता है, दौरे हो सकते हैं या दिल की बीमारी हो सकती है। कभी कभी ऐसे बच्चों को पैदा होने के बाद सर्जरी करने की भी ज़रूरत हो सकती है। तो ऐसे सारे कंडीशंस को हैंडल करने के सारे फैसिलिटीज़ हमारे हॉस्पिटल में है। हमारे हॉस्पिटल की ये खासियत है कि हमारा हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ हर प्रकार के सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज और डायग्नोस्टिक सर्विसेज की अवेलेबिलिटी है। जैसे CT स्कैन की ज़रूरत है, MRI की ज़रूरत है, 2D इको की ज़रूरत है, कार्डियोलॉजी सर्विसेज की ज़रूरत है, रेडियोलॉजी सर्विसेज की ज़रूरत है। यहाँ सारे स्पेशलिटी के सुपर स्पेशलिस्ट यहाँ अवेलेबल है। हमारे पास यहाँ सबसे एक्सपीरियंस पीडियाट्रिक सर्जन भी है, जो काफ़ी क्रिटिकली जो कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज़ हैं उनको हैंडल करने का काफ़ी तजुर्बा है उनको। और स्पेशली मैं हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर सर श्री अकबरुद्दीन ओवैसी जी को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट NICU में प्रोवाइड किए हैं, जो वर्ल्ड के सारे सबसे बेस्ट NICU से कंपेरेबल है।
ये इक्विपमेंट है, रेडिएंट वार्मर्स है, फोटोथेरेपी यूनिट्स है, इंक्यूबेटर्स है, वेंटिलेटर्स है, CPAP यूनिट्स है, यू नेम द इक्विपमेंट, वी हैव द बेस्ट इन द वर्ल्ड। पुरानी हवेली चौराहे के पास मलऊन वसीम रिजवी का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। इस मौके पर एहतजाजियों ने नारेबाजी की। वाज़ेह है कि वसीम रिजवी ने कुरान मजीद की 26 आयतों को हज़फ करने के लिए कहा था, जिसकी वजह से एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56 आसिफ नगर मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ X रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस अपोजिट रिलायंस स्मार्ट टोली चौकी हैदराबाद। तेलंगाना के 2 ग्रेजुएट्स हलकों की रायदही का मजमूई 68%, 169 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा 17 मार्च को। रायदही में ग्रेजुएट्स ने लिया बढ़ चढ़ कर हिस्सा। विज़रा, चीफ सेक्रेटरी और सियासी कायदीन ने अपने हक रायदही का किया इस्तेमाल। असेंबली बजट इजलास का होगा पीर को आगाज। 18 मार्च को बजट होगा पेश, तमाम इंतजामात मुकम्मल। और तेलंगाना में बीजेपी खेलना शुरू करेगी तो टीआरएस का दिमाग घूम जाएगा, मरकजी वजीर किशन रेड्डी का इंतबाह। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।